Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today I have a very interesting and wonderful guest with me. She's a young, beautiful woman. And when I'll start introducing you all to her, you guys would be actually amazed at who is she. She is extraordinary, super talented. She is a practicing lawyer and she does her practice in Islamabad High Court, whereas she has studied from University of California, Berkeley, from where Mr. Zulfikar Ali Bhutto has studied back in his era. And this is a great plus point for all of us that yes, and now she is a politician. Yes, you heard it right. She is a politician, a young woman, dedicated politician. But how is she a politician? I would like to know in the middle of the session. Whereas she is part of the PMLN since 2013. She had been advising and drafting legislation in National Assembly. And also she is a member Central Working Committee in PMLN, yes. So now, in the coming elections, in 2024, she has been nominated as MPA for Punjab Assembly on reserved seat. This is so much more. I'm just introducing you guys about it. So let's just talk to Miss Amna Hassan Sheikh. Assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum, Bushra. Thank you for having me on your show. Thank you, Amna, for being here. And yes, you are a young politician. I'm so inspired by you. First of all, my first question goes to you, that how did you get and stepped into politics? So I think basically it is something which very less people know about me. My grandmother was in politics back in 1940s. She was heading the women's wing of Muslim League led by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. That's great. And I've grown up with my grandmother, hearing her stories of partition and post-partition. So I think ever since childhood, maybe since grade 5 or 6, I knew this is what I wanted to do. That's amazing. That's really great, because I have very few, certain people I have always heard about, they wanted to be politicians since childhood, and that's one of you. So you have studied from University of California, Berkeley. So, and of course law, it's a third university, right? So you have studied from University of California, Berkeley, which is the topmost third university amongst law subject. So how did you get inspiration for that? Acha, so basically I got into like 3 of the top universities, alhamdulillah, but I always wanted to go to Berkeley because, and then later on I'm very happy about my decision, because Berkeley is a very free place. It is some place where you learn freedom. Aap agar dekhein ki all the best judges of the US Supreme Court, most liberal judges are mostly from UC Berkeley. So I think it is some place I always wanted to go, and I'm very happy about my decision. And most of what I've learned today and most of what I bring to the table is what I learned at Berkeley. So, you already knew about it, that Mr. Zulfikar Ali Bhutto had studied. Of course, I think the entire country knows about it. And but the entire, you had that idea, that the concept that you have to follow the legacy and you have to get into politics, so you actually followed a suit, I would rather say. Of course, because I specialized in public policy and politics, and their public policy school is one of the best in the world. And I knew that this is the path I want to take. I think otherwise, if I had to, practice law, I would never go through the ordeal of staying out of my house for such a long time. And then, because studying abroad gives you a lot of advantages, but then again, when you're a pampered child at your home, then it's not an easy task to stay away from home and study all by yourself. So it was a tough few months and almost a year, but it was very exciting, and I think I've learned a lot from there. That's good. So ever since you had been drafting and advising for legislation in National Assembly, so how come now you have been nominated as a MPA on reserved seat for Punjab Assembly? Acha, so do you mind if I answer that in Urdu? Yeah, please. Acha. Basically, जब National Assembly के अंदर, क्योंकि I am based in Rawalpindi, so obviously that's my home. So I used to, मैंने सियासत शुरू की थी 2013 में PMLN के साथ, and I started my politics from the National Assembly. I used to attend meetings, और मैं वहाँ पे जब जाती थी meetings attend करती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता as I learned, I was assisting Mr. Akram Sheikh in a few high profile cases which included the Judicial Commission, the Panama trial, and a few others. So उसके अंदर जब मैंने legislation शुरू की, तो because I was based in Rawalpindi and Islamabad, I was legislating there, and I was assisting senior lawyers initially
initially, and then directly assisting the opposition leader and his team for the legislation. But I think my strong pursuit, because of my legal background and my specialization in public policy and politics, is legislation. So I don't think it matters even if I was legislating for the assembly in Ghana. I don't think it would matter a lot, because it's all about purposes of approach and what you actually want to achieve from the legislation. So I'm very happy and glad that my party has nominated me as a member of the Punjab Assembly, and I will make sure that whatever positive input I can give as a member of the Punjab Assembly for the province of Punjab. एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ आपके पास कोई 11-12 डिपार्टमेंट्स हैं, जबकि पंजाब असेंबली के पास आफ्टर द 18th अमेंडमेंट 48 डिपार्टमेंट्स हैं. सो आई थिंक द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन इन पंजाब इज़ मच बिगर देन द नेशनल असेंबली. So now, for example, if you get nominated and return into an MPA in the coming elections, so do you have any plans or strategies to bring for women development and for the rights of women in legislation? Definitely. I think कि ख़वातीन के हवाले से जितना काम PMLN की गवर्नमेंट ने किया है, बहुत कम लोगों ने यहाँ पे किया है. क्योंकि अगर आपको याद हो, शहबाज साहब जब CM थे, ख़वातीन को मोटर बाइक्स भी दी गई थी, लैपटॉप्स के लिए उनका अलहदा से कोटा था. और अभी हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ख़वातीन का एक पूरा चैप्टर रखा है, जिसके अंदर देर आर स्कॉलरशिप्स फॉर वुमेन, देर आर स्टाइपेंड्स फॉर वुमेन, देर आर ऑल्सो लाइक माइक्रो फाइनेंसिंग लोन्स फॉर वुमेन हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस. तो डेफिनेटली ख़वातीन, और स्पेशली मरियम नवाज़ साहिबा के लीड लेने के बाद से PMLN की प्रायोरिटी में जो है ख़वातीन बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है. दैट इज़ वाई she really encourages younger women. That is probably why I also made it to the list. She's very encouraging of younger women to step forward, and she wants people to, women to be independent. Abhi balki, I don't know if you're following the election campaign, 4-5 days ago we had a women bike rally for her constituency. So that was a very different thing in Pakistan. आपको मतलब मेरा ख्याल है, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई 4-5 ख़वातीन बाइक पे कभी नज़र आई हैं. वो जिनको बाइक्स दी भी गई थी, उन्होंने भी अपने भाइयों को, बेटों को दे दी. सो इट वाज अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव चेंज, एंड इंशाल्लाह ताला वंस वी मेक द गवर्नमेंट, आई थिंक यू विल सी मच मोर ऑफ इट. No, that's a great idea, and I have always taken it as a very positive element from the Nawaz family side, that he has also asked her daughter to come in front and act as a politician. Otherwise, you see the orthodox minds in politics, they would not allow their women to come out of houses. बिल्कुल. So this is the plus point. यहाँ से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि if they are allowing their daughters, then obviously they see everybody from the same islands. So that's a good idea. Definitely. Whereas when I talk about the male dominating society, अब जब मैं बात करती हूँ असेंबली की, तो देखिए असेंबली में औरतों के हकूक़ के लिए, जैसे कि आप सब हो गई जो रिजर्व सीट्स पे वुमेन हैं या बाकी भी औरतें हैं, वो जब अपने इक्वल राइट्स मांगती हैं लेजिस्लेशन में, असेंबली में, तो उससे मेल डोमिनेटिंग जो पार्ट है वो क्या क्या चैलेंजेस और इश्यूज रेस करते हैं? अच्छा, आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट. मे बी शायद ये इमेज है कि जी जो ख़वातीन रिजर्व सीट पे आती हैं उनको शायद कोई कम इम्पोर्टेंस दी जाती है या इस तरह करके, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग लाइक दैट. आप अगर PMLN में भी देखें तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमारी 2 दफ़ा फेडरल मिनिस्टर रही हैं फॉर इन्फॉर्मेशन. शी इज़ बीन द फेस ऑफ द गवर्नमेंट टेक्निकली. अभी जो 16 महीने की भी हमारी गवर्नमेंट थी. सो I don't feel that there is any kind of, prejudice against women on reserved seats. And then again, obviously, person to person bhi vary karta hai. If you have some sort of, positive input, that's always welcomed. And I think, especially in PMLN, it's very positively welcomed. So when I talk about Nawaz Sharif, I have never seen him in any interview or on screen coming and even saying a single statement against any question. क्या वो interviews देने से कतराते हैं, hesitant है? नहीं, आई थिंक मियाँ साहब ने बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए हैं. मैंने आजकल तो नहीं देखा वैसे. आजकल तो डेफिनेटली जी वो इलेक्शन कैंपेन के साथ इतने मसरूफ़ हैं. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ही इज़ बैक आफ्टर 7 years. सो देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. हमें जो चीज़ ऑन स्क्रीन नज़र आ रही होती है वो तो शायद एक जलसा हो गया या कैंपेन हो गई, बट पसे पर्दा बहुत चीज़ें चल रही होती हैं. उन्होंने वापस अपनी पार्टी को आके सारी चीज़ें टेक ओवर की, चला रहे हैं माशाल्लाह. इलेक्शन कैंपेन को पूरा खुद देख रहे हैं. मरियम बीबी ने इतना अरसा पार्टी को संभाल के रखा उनके लिए, तो अब वो आके देयर इज़ अ लॉट दैट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ. और उनकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, तो उसके बावजूद ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. आई डोंट थिंक इलेक्शन टाइम इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू डू इंटरव्यूज़. प्रॉबेबली
कुछ और जमातें ऐसी हैं, मैं देखती रहती हूँ और जमातों के लोगों को जो हर वक्त टीवी पे आजकल आए हुए हैं और हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, वो प्रॉबेबली शायद उनके पास इलेक्शन रिलेटेड कुछ नहीं है करने को, तो वो इंटरव्यू दे रहे हैं ज़्यादा। बात कर रही हैं बस वो आप आई एम श्योर आप आई हैव नो आइडिया आप किन की बात कर रही हैं। सब लोग ही मैं देखती हूँ, पीटीआई वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले, वो दिन में 4-4 इंटरव्यूज आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे, तो सिर्फ इंटरव्यू ही दे रहे हैं। मियाँ साहब हैज़ अ लॉट ऑफ एक्चुअल वर्क टू डू, वो ही हैज़ बिगर प्लान्स फॉर द कंट्री। पहले वो जब हम मैनिफेस्टो बना रहे थे तो उन्होंने हर चीज़ को पर्सनली मॉनिटर किया है और उन्होंने कहा कि जी मैंने ये जो मुश्किलें हमारी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो महंगाई है, जो और प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैंने डील करना है। एंड ही हैज़ बीन वेरी बिजी टू do better things than interviews. I can relate that, and I can also see the defensive attitude from your side for the PMLN, and that's a good idea. That's a good thing. That's called being a true politician from a true political party. That's okay. That's fine. So when I talk about Mr. Imran Khan, yep. Do you find any future of PTI Imran Khan after elections of 2024? I think उनका बिफोर इलेक्शंस ही कोई फ्यूचर नहीं है, तो आफ्टर इलेक्शंस क्या फ्यूचर होगा? अच्छा मुझे ये बताया चले इलेक्शंस 2024 में पीटीआई नून लीग आप क्या फ्यूचर देखती हैं? मैं समझती हूँ कि पीटीआई इज़ अ irrelevant entity when it comes to elections 2024. इनके एक एक हल्के से 4-4 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। इनके अपने वोटर सपोर्टर को कैंडिडेट का निशान तक पता नहीं है। एक कैंडिडेट कहता है मैं पीटीआई का असली उम्मीदवार हूँ, तो अब इतना chaos नहीं वो आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे। पिंडी के हल्के में भी एक हल्के में, जिस तरह क्योंकि मेरा अपना हल्का पिंडी का है, वो एक कैंडिडेट कहता है मैं असली कैंडिडेट हूँ, दूसरा कैंडिडेट कहता है मैं असली कैंडिडेट हूँ। तो ये बेचारे तो आपस में लड़ रहे हैं, हमने इनसे क्या लड़ना है? मेरा हल्का जी रावलपिंडी का है। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन रावलपिंडी। ढेरी हसनाबाद का जो एरिया है वो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर ने उस एरिया को आके आबाद किया था। हसन इज़ माई फैमिली नेम हेंस, बल्कि हमारे चीफ साहब जो हैं वो ही ऑल्सो हेल्स फ्रॉम द सेम एरिया। सो दैट इज़ वेयर आई बिलोंग टू। मेरा अपना हल्का वही है। NA-119 जो लाहौर और पंजाब से हल्का बनता है, उसकी कैंपेन्स को भी आप रन कर रही हैं। मरीम नवाज़ का जो हल्का है, यस तो मुझे बताया कि उसमें कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बाकी MPs के साथ भी हैं, आपके साथ और भी खवातीन हैं PMLN की। सो हाउ डू यू फाइंड इट? हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज अपने एरिया में तो सब लोगों ने कैंपेन्स, बिकॉज आई बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट लाहौर की कैंपेन्स का और लाहौर के ऑन ग्राउंड सिचुएशन का मुझे उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं था। ऑलमोस्ट अ मंथ अगो आई वॉज कॉल्ड हेयर बाय मरियम नवाज साहिबा फॉर हर कैंपेन, एंड इट्स नॉट मी अलोन। आई थिंक ये सबसे पहली बार हो रहा है इतने सालों में कि कोई 8 से 10 खवातीन MPs जो हैं, दे आर रनिंग द कैंपेन, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। वी आर ऑल women रनिंग द हर कैंपेन माशाल्लाह। और ऑन ग्राउंड सिचुएशन आई थिंक वी आर स्वीपिंग द इलेक्शन, बिकॉज मैं लिटरली जिस घर में गई हूँ मुझे सिर्फ यही सुनने को मिला है कि जी हम कायद नवाज शरीफ के दीवाने हैं, हम कायद की बेटी के दीवाने हैं और हम उनको हर तरह से सपोर्ट और वोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मरीम नवाज जो है उन्होंने एक सीट से इलेक्शन लड़ने का भी इंतखाब किया है, और इसके अलावा वो CM के लिए भी उम्मीदवार हैं पंजाब से। तो अगर तो वो हार जाती हैं तो क्या ऑप्शन बचती है फिर? नहीं, वो इंशाल्लाह ताला दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ रही हैं, प्रोविंशियल असेंबली से भी और नेशनल असेंबली से भी, और दोनों हारने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रही हैं इंशाल्लाह ताला दोनों सीट्स अपनी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली पार्टी विल डिसाइड, और वो जो पार्टी डिसाइड करेगी वैसे ही होगा। आप ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि जो उस्मान बुज़दार जैसी मुसीबत हमारे मुल्क पे और इस पंजाब के सूबे पे और लाहौर शहर पे ख़ास तौर पे मुसल्लत की गई थी पिछले 4 साल, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एन ऑप्शन कि कोई भी जो कैंडिडेट है PMLN का, क्योंकि शहबाज साहब की परफॉर्मेंस देखी हुई है लोगों ने यहाँ पे 10 साल देखी हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए कोई भी ऐसा है जो वो कहे कि जी हमने PMLN के अलावा किसी और को वोट देना है। जब मैं बात करती हूँ मरीम नवाज़ और हमज़ा की, तो दोनों की सियासत में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? आई थिंक दोनों की सियासत में, अब ये तो थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। हमज़ा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, जिस वक्त सारे लोग बाहर चले गए उस वक्त उन्होंने पार्टी को संभाल के रखा और बड़ा कुछ किया, बट पिछले 7 साल में जो हमने देखा है पॉलिटिकल शिफ्ट, वो ये है कि मरियम बीबी ने सबको इकट्ठे करके रखा है। क्योंकि जो हालात थे, जिस तरीके से PMLN के साथ जुल्म और सितम हो रहे थे, जिस तरीके से PMLN की डिसमेंटलिंग की जा रही थी, मरियम बीबी को खुद जेल जाना पड़ा,
और आप देखें कि उस वक्त भी हमारी जमात का एक शख्स भी नहीं है जो हमसे दूर गया, और बदतरीन हालात, जेलें काटी, मुश्किलें बर्दाश्त की, जुल्म सहे, लेकिन कोई एक शख्स भी, और वो मरियम बीबी की लीडरशिप की वजह से हुआ है. सो आई थिंक शी इज़ द वन जिन्होंने, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि पावर टॉक्स टू पावर, और उन्होंने ये भी कहा था कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी. तो वो वाली बात है कि जिस तरह से उन्होंने मज़ाहमत की है पिछले 7 साल के अंदर, आई थिंक दैट्स रिमार्केबल. और उस मज़ाहमत की वजह से आज जो है PMLN यकजान होके माशाल्लाह इस इलेक्शन में जारी और कामयाबी होगी. तो अगर कल को जब आप इसी तरह यू वुड बी वन ऑफ द मोर एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर, कल को अगर आपको जेल जाना पड़ जाए अपनी PMLN की political situation में, तो how would you, are you ready to take that challenge? I don't think there's any problem with that, because I feel कि अगर आप पॉलिटिक्स में आए हैं, पॉलिटिक्स क्या for that matter, I feel कि आप किसी भी फील्ड में आए हैं और अगर आपने अपनी मर्जी से उस चीज़ का इंतखाब किया है, तो then you should be ready for all the hardships and all the good and bad things that come with it. So there's no harm. पहली दुआ तो ये है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे कभी ना हों कि किसी भी सियासतदान को जेल जाना पड़े. आई होप एंड प्रे दैट अभी जो कुछ PTI ने किया और जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, जिस तरह से लोगों को इंतशार फैलाया, लोगों में हमारी यूथ को जिस तरह तबाह किया, तो मैं तो सिर्फ दुआ करती हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सर्कल यहीं पे एंड हो जाए. लेकिन खुदा ना खास्ता, इफ इट कम्स टू दैट, आई डोंट थिंक आई हैव एनी इशूज़ विद स्टैंडिंग विद माई लीडरशिप. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो है वो 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है. I think it's a writing on the wall that he's becoming the prime minister for the fourth time. एक तो होता है ना कि you know कि yes now he is becoming, because it has been either adjusted or something like that, or otherwise you see कि no, he's coming on merit and yes he could be. No, I don't think there has been any adjustment like that, but मैं तो खुद क्योंकि कैंपेन कर रही हूँ, मैं हलकों में जा रही हूँ और आई एम वेरी पोलिटिकली एक्टिव फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, सो आई कैन सी इट. जो आप जलसे देखें, so he's coming on merit, you are saying this, right? आप जलसे देखें ना, आप जहाँ जिस शहर में मियाँ साहब कदम रख रहे हैं वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग उनके लिए आ रहे हैं. सो दिस इज़ बेसिकली लोग, जो मैंने पहले कहा कि जो कुछ हमारे मुल्क पे मुसल्लत किया गया पिछले 4 साल, वो इट वॉज़ अ नाइट मेयर फॉर द पीपल. 63 रुपीज़ से पेट्रोल उठा के 300 रुपये कर दिया गया. आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी हो गई है. लोग रोटी नहीं खा सकते. 5 रुपये की रोटी 25 रुपये की. अभी जब आते हैं इलेक्शन, चले हम कह देते हैं कि 2024 जिसका भी है, जो भी हुकूमत आ रही है, अगर आपकी हुकूमत आती है, तो ये जो पेट्रोल अभी आपने 63 का बताया है, 63 तक हो जाएगा दोबारा वापस? देखिए 63 एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं दे सकती, बट डेफिनेटली सबसे पहली प्रायोरिटी मियाँ साहब की यही है. मैंने आपको यही बताया कि मैनिफेस्टो के कि लोगों के लिए डेली लिविंग सस्ती करनी है. आर यू श्योर किस परसेंटेज तक हो सकती है? बिकॉज अभी जाते जाते निगरान हुकूमत भी ना और पेट्रोल भरा गई है, मतलब पता नहीं क्या क्या कर गई है. आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे तो इधर से गुजर जाती है चीज़ें. देखें निगरान हुकूमत तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड, मतलब there was no use of them to take such decisions while नहीं, निगरान हुकूमत को तो आप हुकूमत ना काउंट करें ना. देखें जी, तो वो लोग क्यों चीज़ें महंगी करती हैं? वो तो जो उनके पास ओगरा वगैरह से और जो समरीज आती हैं, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ एज अ टूल. तो आप रोल बैक करेंगे आकर? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह. ये जो सारी महंगाई अभी 3-4 दिन पहले हुई है दोबारा से, मोस्ट डेफिनेटली करेंगे. सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस को नहीं, ऑब्वियसली जब इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बेहतर होंगी, सारी चीज़ें बेहतर होंगी, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी कम होगी. और हमारे मैनिफेस्टो का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमने विद इन अ ईयर इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में लाना है इंशाल्लाह ताला. अच्छा, मैंने सुना आप लोग ने अपने लेजिस्लेशन से हटा दी है नैब को? नहीं, हम बेसिकली हमने मैनिफेस्टो में ये कहा है क्योंकि हम नहीं चाहते, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि हमारी दुआ और कोशिश यही है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये जो सर्कल चल रहा है पिछले काफ़ी सालों से, ये एंड हो जाना चाहिए. ठीक है. अकाउंटेबिलिटी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में फ़र्क है. तो अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए. मेरा ख्याल है जितने सर्वेज हुए हैं, अभी भी आप रीसेंट सर्वेज देखें, PMLN के दौर में करप्शन सबसे कम थी. इवन 16 महीने की हुकूमत में PTI की हुकूमत से बहुत कम थी करप्शन. सो करप्शन हर लेवल पे हो रही होती है. इट्स नॉट जस्ट कि आप कहें कि जी जूनियर मोस्ट लेवल से भी करप्शन हो रही होती है. और PMLN जब भी आई है तो उनका फोकस हमेशा ये हुआ है कि हम लूप होल्स को एलिमिनेट करें, हम करप्शन को एलिमिनेट करें. बट दैट डज़ नॉट मीन कि इन गार्ब ऑफ दैट आप लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते रहें. और सीनियर लीडर्स को, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया है प्रैक्टिकली, उनको आप उनके साथ जुल्म और सितम करते रहें, करप्शन के फजूल से एक
कमेंट के नीचे. सो आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट. तो मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों के दरमियान प्राइम मिनिस्टरशिप को लेकर कोई मुकाबला है? आई डोंट थिंक है, बिकॉज शहबाज साहब जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे भी तो उन्होंने तब भी ये कहा, और वो बेशतर जगहों पे ये बात कर चुके हैं कि मेरा प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ है. और आई थिंक हम सब की और पार्टी वालों की, आवाम की, हर किसी की यही ख्वाहिश है कि मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर हों, और इंशाल्लाह वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर होंगे. और जब मैं बात करती हूँ मरीम नवाज की और हमजा शहबाज शरीफ की, तो दोनों में क्या इख्तलाफात हैं? कोई इख्तलाफात हैं? बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है जी. उनका बिल्कुल एक बहुत बहन भाइयों वाला, बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. जैसे शहबाज साहब और मियाँ साहब ने हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, ये दोनों भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और करते रहेंगे डेफिनेटली. सो आई थिंक ये सिर्फ र्यूमर्स हैं. ये अपोजिंग पार्टीज़ वालों को बहुत मज़ा आता है ऐसी मिर्च में उनके पास एक्चुअल कॉन्टेंट नहीं होता, अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती बताने के लिए, तो वो फिर ऐसे मिर्च मसाले वाली बातें करते रहते हैं, शायद व्यूज़ के लिए प्रॉबेबली. और आप लोग सही तैयारियां कर रहे हैं? आप लोग अपने आप को एवेलुएट कर रहे हैं? हम तो इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं. मतलब you think that the PMLN is actually working 24/7 and being very active, so you are actually evaluating yourself, right? 100%. As compared to other political parties. No, 100%, because it's just not now. I think PMLN has always worked very hard. Whenever they've been in government, they've always worked very hard. और ये नवाज शरीफ साहब का विजन ही ये है. उन्होंने हमेशा काम करने की तरजीह दी है. आप अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ इस मुल्क को दिया, उसके अलावा है क्या? दानिश स्कूल्स हैं, मोटरवेज़ हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड नेटवर्क्स हैं, टू द एक्सटेंट कि इंटरनेट है. हमारे फॉरेन रिलेशंस कितने बेहतर होते हैं. उसके अलावा इस मुल्क में किस पॉलिटिशियन ने कुछ किया है? लेकिन ये जो कर्जे वर्जों की बात होती है, IMF को खुदाफिज कहने वाला भी पहला और आखिरी वजीर आज़म इस बार भी होगा ऐसा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं. चलो देखते हैं, जब हुकूमत आएगी वो तो ऑब्वियसली सबके सामने होगी. लेकिन मुझे ये बताइए कि जब मैं बात करती हूँ टूरिज्म की, तो पाकिस्तान के टूरिज्म को बेहतर करने के लिए कुछ किया जा रहा है या नहीं? जी डेफिनेटली, हमने अपने मैनिफेस्टो में पूरी टूरिज्म पॉलिसी दी है, एंड आई थिंक इट विल एड अ वेरी सब्सटेंटिव अमाउंट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में इतना ज़ख़ीरा है, इतनी खूबसूरत जगह हैं, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि वी नीड टू कैपिटलाइज ऑन दैट. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ इन माई पर्सनल कैपेसिटी, वो ये है कि ये दूसरी पार्टीज़ वालों को भी समझना चाहिए, ये हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि जब हम इंतशार फैलाते हैं, जब हम अपने इंस्टीट्यूशंस को अटैक करते हैं, जब हम 9 मई जैसे वाक़े करते हैं, तो फिर इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर अदर पीपल टू कम ना, जब उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क. तो ये तो पता नहीं, ये करने वाले शायद खुद नहीं सोचते कि अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं. लेकिन आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को ख़त्म कर दिया है गैर शरई कहते हुए, और इसके अलावा इमरान खान को 3 बरस की सज़ा भी हो गई है. तो ये दुरुस्त है सब कुछ? देखिए, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आई हैव बीन वेरी बिजी विद द NA 119 कैंपेन, तो मैंने डिटेल में, तो जैसे मैं पढ़ती होती हूँ बीइंग अ लॉयर, मैंने उस केस को डिटेल में तो नहीं पढ़ा. बट शरिया लॉ जो है वो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, और शरिया लॉ के हिसाब से जब इद्दत पूरी करने से पहले आपका निकाह जो है वो गैर शरई है. एंड आई थिंक कि इफ़ द डिसीजन हैज़ बीन, मुझे यकीन है कि दैट द डिसीजन हैज़ बीन गिवन ऑन मेरिट, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद इट. मुझे ये बताएं कि हिना रबानी और मरियम औरंगज़ेब की जो दोनों की सियासत है, उसमें क्या फ़र्क है, और सियासी पर्सनैलिटीज़ में क्या फ़र्क है? आई थिंक कोई भी खातून जब अपने घर से निकलती है और सियासत करती है, तो वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के आ रही होती है सबसे पहले. सो आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर एनी वुमन हु इज स्टेपिंग इन दिस फील्ड, इन दिस अरीना, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड इट्स नॉट ईजी बीइंग अ वुमन पॉलिटिशियन. सो आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर बोथ. बट जहाँ तक हम मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात करें, तो आई थिंक कि जहाँ पे मैंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा ने पार्टी को जोड़ के रखा, तो उस पार्टी की, उस जुड़ी हुई पार्टी की आवाज़ जो बनी वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा है. एंड शी हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, नॉट जस्ट टुडे, इवन व्हेन वी वर इन ऑपोजिशन. आई थिंक कि शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब ऑपोजिशन की बात आम आवाम तक पहुंचाने के लिए. सो आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हर फॉर दैट. एंड व्हाट अबाउट हिना रबानी? डेफिनेटली शी हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल एज वेल, बट रिसेंट टाइम्स में हमने उनको इतना एक्टिव नहीं देखा है जिस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थी. सो डेफिनेटली उन्होंने किया है, बट रिसेंटली सिंस शी हैज़न्ट बीन दैट एक्टिव, सो आई कांट रियली कॉमेंट ऑन दैट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ जो हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में उनके बेटे जो हैं, ही वुड ऑल्सो फॉलो द लेगेसी एंड गेट इनटू पॉलिटिक्स? जुनैद सफदर की अगर मैं बात करती हूँ,
I think he would definitely, and he should actually, because he is, mashallah, a Cambridge graduate, and he studied public policy, and he's an excellent candidate, because मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हर्ज होना चाहिए. और मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ जुनैद सफदर और उनके मैरिटल रिलेशन की, जो कि उस वक्त ख़त्म हो रहा था जब नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से लंदन से इधर आ रहे थे, एंड देयर वाज अ ह्यूज प्रिपरेशंस फॉर हिज अराइवल एंड एटसेट्रा, वेलकम एज वेल. तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट कि मरियम नवाज is too busy in welcoming his father, and then on the other side she's too lenient and carefree about the separation and the breakup of his son's relationship. So how do you take these two things? देखिए, आई डोंट थिंक दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड. हमारा प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का प्रॉब्लम ये रहा है बड़े अरसे से कि हम ये भूल जाते हैं, ये डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि एक पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है. भले कोई पॉलिटिशियन हो, दे आर एंटाइटल्ड टू देयर पर्सनल लाइफ, एंड इट इज़ अ पर्सनल अफेयर. आई थिंक बोथ पार्टीज इन दिस मैटर हैव शोन मैसिव रिस्पेक्ट, एंड देव वेरी जुनैद साहब ने खुद ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जी इट्स अ पर्सनल मैटर एंड आई वुड लाइक कि लोग इसमें ना इंटरफेयर करें. तो आई थिंक पॉलिटिक्स को इसमें घसीटना या मियाँ साहब के इस्तकबाल को और 21 अक्टूबर को इसमें मिलाना कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंदी की बात है. अगर लोगों ने ऐसा कमेंट, मैंने तो खैर नहीं पढ़ा, बट अगर किया भी है तो आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट, एंड आई फील दैट एवरी पर्सन, पहली बात तो ये है कि जुनैद सफदर इज़ नॉट इन पॉलिटिक्स हिमसेल्फ एज ऑफ नाउ. सो उनकी लाइफ को तो वैसे ही पब्लिक उनको लोगों को नहीं करना चाहिए, और अगर वो हों भी तो पब्लिक लाइफ जो एक पॉलिटिशियन की है और जो पर्सनल लाइफ है वो बड़ी अलग होती हैं. आई एम एंटाइटल्ड टू माई पर्सनल लाइफ, एवरी पॉलिटिशियन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन पर्सनल लाइफ, एंड आई थिंक वी नीड टू पुट एन एंड टू दिस कल्चर ऑफ ड्रैगिंग पीपल्स पर्सनल लाइव्स इनटू पॉलिटिक्स. मुझे ये बताएं कि जब आप एज अ वुमेन पॉलिटिशियन असेंबली में जाती हैं और वहाँ का माहौल है, ज़ाहिर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं? मैं समझती हूँ कि चैलेंजेस फेस करना जो है ना इज़ अ लॉट डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ एज वेल. सबसे पहले तो मैं सब औरतों को आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को वीक समझना छोड़ दें. जब हम अपने आप को वीक समझते रहेंगे ना तो लोग भी हमें वीक समझेंगे. दूसरी चीज़ ये है कि चैलेंजेस नो डाउट बहुत तरह के होते हैं, बट देन यू हैव टू डील विद इट विद अ स्ट्रॉन्ग माइंड. इंदिरा गांधी साहिबा के पास एक शख्स आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना यू हैव टू हैव अ वेरी थिक स्किन, तो अपनी स्किन को बहुत थिक बनाओ, उसके बाद पॉलिटिक्स में आना. सो हैविंग सेड दैट, आई थिंक एज अ वुमन प्रॉबेबली इवन थिकर देन यूजुअल. इतनी कोई हमारी सोसाइटी जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है ख़वातीन पॉलिटिशियंस के बारे में. मतलब मैं आपको एक फ़नी कमेंट बता देती हूँ, जैसे अब और कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे कमेंट्स भी कभी कभार आ जाते हैं कि जी देखो ये अपनी आई लैशेज़ फ्लटर कर रही है. सो आई लाफ अबाउट दैट कि भाई किसी आदमी से तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि इसकी आई लैशेज़ लंबी हैं या छोटी हैं, लेकिन औरत की आई लैशेज़ से भी प्रॉब्लम है. So those things are unfortunate, but then again I think the responsibility is also on us to kind of as women change that perspective of the society. क्योंकि जो शख्स, जो आदमी औरतों को इस तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो उनके बारे में इस तरह से बातें करते हैं, उन आदमियों की परवरिश भी औरतों ने ही की होती है. सो आई थिंक, और फिर माशाल्लाह रईसई का अमी, वो आप कहेंगी फिर से जिक्र हो गया, रईसई का अमी जब हमारे लीडर ऐसे होंगे जो हमारी पूरी यूथ को ख़राब कर गए हैं और जो ऐसी जस्टिफिकेशंस दे गए हैं कि औरतों का कसूर है, तो फिर बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, और कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह. Any good statement in the end you want to say, good wishes to your political party and to other political parties as well? I think I would wish well for everyone. हमारी हमेशा से कोशिश और ख्वाहिश यही हुई है कि हम अच्छे नोट के ऊपर पॉलिटिक्स करें और अच्छे अखलाक के साथ पॉलिटिक्स करें. और मैं अपनी आवाम को भी ये कहना चाहूँगी कि जब वोट देने एक तो वोट देने ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके वोट से ही आपकी तकदीर बदलनी है, आपके वोट से ही पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है. और जब वोट देने जाएं तो ये ज़रूर याद रखें कि किसने आपके मुल्क को खुशहाली दी, किसने आपने के मुल्क को तरक्की दी, और किसने आपकी यूथ को ख़राब किया, किसने आपके मुल्क में इंतशार फैला. Great pleasure to have you here today, and thank you once again for taking out your precious time during these crucial hours when you are super busy running campaigns. I am actually heading to the campaign right after this. NA 119, yes, yeah. So you're running a campaign as well, and I'm super proud of you. And please, आप जैसे लोगों की ही ज़रूरत है who
would turn into representatives of Pakistan as young female politicians. And yes, why not? Best of luck to you and to your political party. And thank you guys for watching us today. Stay tuned and please let us know if you guys have any comments or queries just down below the comment section. And do not forget to share, like, and subscribe our Sama podcast. Bushra Khan's Living Till to Date. Bye bye.